Good morning, everyone. Good morning, sir. Today I will start networking concept. Whilst I have already completed one delete program was there is same as I have made with the classes. So you make in the same way. So we'll start with the networking concept. And in networking, you have to write definitions. Now, I'm going to teach you how to write all these definition. For that, we'll start with the chapter number. I don't know what is the chapter number here, but networking concept. Okay. So as per syllabus, I will teach you and I will share a screen for you so that you will be able to see what I'm going to do. So I'll share, I've already shared the screen. Now what I'm going to do here, I've already scanned the different pages of the book. Okay. So I'll open with, you can say, any other app, good app is there? More apps because of Microsoft MCH Windows got that. Look for another app. No. Yes. So let's see, it's open in some, no. It requires some link. Wait. I'll open with Picasso or something. Edit with Paint ही कर सकते हैं चलो. No. What happens? अभी तो खुल रहा था ये. Open with Picasso photo viewer. Okay. ये कौन सा पेज है इससे पहले आना पड़ेगा. ये तो चक्कर अब इसको open with Picasso photo viewer. ये कौन सा पेज है. इस सिस्टम के साथ बहुत प्रॉब्लम की गई है. आई डोंट नो. All the setting, everything is changed. Types of network is there. Then open. खोल नहीं, डायरेक्ट क्लिक करने पे खुलना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है. सर वो जो आप एप्लीकेशन से खोलना चाह रहे हो शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप प्रॉपर्टीज में जाके उसकी डिफॉल्ट ओपनिंग एप्लीकेशन मैंने कर दिया चेंज था. कर दो. मैंने कर दिया था बेटा, इसके बाद भी यहाँ नहीं हो. I'll try again. Okay. Apply. हाँ भाई. Okay. जैसे अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है. खुला, चलो थैंक गॉड. दूसरा वाला हाँ खुल गया, थैंक्स गॉड. पहले नहीं खुल रहा था, अभी चलो खुल गया. ओके. मैंने बहुत सारे पेज स्कैन करके डाल दिए ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो जाए. पेज नंबर कौन सा है वो नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें. नेटवर्किंग वाला फर्स्ट पेज कौन सा है, वो आया या नहीं आया, और कुछ नहीं आया इससे भी पहले. ओके, एक मिनट रुको. जस्ट अ मिनट. ये कुछ पेजेस रह गए थे ना यहाँ पे, इसीलिए कंट्रोल सी. Come to the point. Control V. Okay. 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 We'll start from here. So first is your chapter number. You write 10 computer networks. In the history of mankind, network in something. अब मैं क्या क्या इसमें लिखवाऊंगा आप भी देखना. So you write first definition of computer network. Computer network. A computer network is the interconnection of. अब इसमें नहीं लिखा, मैं तो अपनी मर्जी से लिखवा रहा हूँ. कई बार मैं नेट भी यूज कर लूंगा. Is an interconnection of different types of. Is an interconnection of number of computers or nodes or workstations. Or workstations. 386.
ठीक है, अब इसमें ये डेफिनेशन यहाँ पे एक छोटी दी है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। Now see here, one definition is given. हाँ, ये definition, a computer network is a collection of interconnected autonomous computing device as to exchange information. तो आपने जो लिखा है ना उसमें बस इतना सा और बढ़ा लो, as to exchange information और share resources. ठीक है, two or more autonomous computing devices connected to another in order to exchange information form a computer network. क्लियर हो गया डेफिनेशन व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? एग्जांपल दिखा दिया कि ब्रॉडबैंड मॉडेम हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, कंप्यूटर एक दूसरे से केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके एडवांटेज लिखो, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख लेना। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, शेयर रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेयर स्टोरेज, शेयर स्टोरेज, 3-4 पॉइंट्स वाइज लिखना, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये पेज आपके पास रहेगा, आप इसमें बढ़ा सकते हैं। कैन शेयर सॉफ्टवेयर, रिसोर्स शेयरिंग में सब कुछ आ जाता है, मगर इन्होंने सॉफ्टवेयर को अलग कर दिया है। रिसोर्स मीन्स इट कुड बी अ हार्डवेयर रिसोर्स और अ सॉफ्टवेयर रिसोर्स, बट इन्होंने अलग किया तो आप अलग कर दो। कैन शेयर सॉफ्टवेयर, इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। कभी शायद आपसे डिसएडवांटेज पूछे, वैसे एडवांटेज ज्यादा है। द सिस्टम्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू रन। जब बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे ऑब्वियसली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज सर्विस कैन बिकम अन। ठीक है, आपको प्रॉपर मैनेज करना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी, सपोज जहाँ स्टार टोपोलॉजी की जरूरत है वहाँ बस टोपोलॉजी कर दोगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट मैनेजिंग द सिस्टम वेल, सो नेटवर्क सही से नहीं चलेगा। जहाँ पे आप इंटरनेट की जरूरत है, जहाँ ब्रॉडबैंड की जरूरत है, वहाँ कुछ और यूज करोगे, तो मैनेज करना बहुत जरूरी है। If softwares and files are held centrally, it may be impossible to carry out any work if the central server fails. Obviously, अगर आप सर्वर पे फेल होता है तो सब कुछ फेल हो जाएगा। एंड जो हमारे साथ भी हो रहा है, फाइल सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। गॉट इट? सो दीज आर द सम डिसएडवांटेज। सिक्योर नहीं है कोई भी डेटा नेटवर्क पे। कितने पीएम मोदी की जब वेबसाइट या उनका अकाउंट हैक हो सकता है, तो हम लोग क्या चीज़ है। सो हमारे साथ ये बहुत समस्या आ रही है और दूसरों के साथ, क्योंकि अभी सेंट पॉल की साइट रन हो रही है, रोजाना इस पे मतलब थाउजेंड्स में हिट होते हैं। इस कारण से उन्होंने इसको टारगेट बनाया था। ठीक है, सो ये पेज मैंने आपको समझा दिया। पहली बार डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर दूं आपके लिए। ये पॉइंट क्लियर है? शशि थ्रो थम्स अप सो दैट आई विल गो अहेड। यस सर। ओके, मैंने बताया ना इसमें टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पेज नंबर था, अब 386 हो गया, 387 होना चाहिए। ये पेज नंबर कौन सा? ये पहला वाला सर आपने रिकॉर्डिंग, अच्छा है ठीक है, वो मेरे को लगा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी आपने, तो मैं वही। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। 387। नेक्स्ट इज योर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क्स। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क्स आर, लिखिए, होस्ट, या आप स्कैन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज यूज। होस्ट, नोड्स, सर्वर्स, क्लाइंट्स, network hardware, communication channels, software, network services. These are the different components in network. It's not a very interesting topic जहाँ मुझे कुछ करना है बहुत ज़्यादा। Definitions है and इसमें भी 10 to 15 marks आपका syllabus है। I will show you the new syllabus accordingly. I will teach you. So host or nodes. The term host or nodes refers to the computers that are attached to a network and are seeking to share the resources of the network. Of course, if there were no nodes, also called workstation, there will be no network at all. तो workstation या host या node होना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा।
मतलब मैं अपने कंप्यूटर पे हूँ और मैंने कोई कंप्यूटर इसके बाद कनेक्ट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। तो होस्ट भी होना, होस्ट और नोड्स, द टर्म होस्ट और नोड्स रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू नेटवर्क। तो मैं सर्वर के साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है, ठीक है। सर्वर जो कि आपको डेटा रिसोर्सेज ओके प्रोवाइड करेगा, दैट इज सर्वर। सर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क। सर्वर is responsible for making the network tasks happen. In other words, server facilitates, यहाँ से लिखना, in other words, a server facilitates networking tasks like sharing of data, resource sharing, communication among host. ये है मेन काम सर्वर का। यहाँ पे भी शॉर्टकट में भी यही लिखा है, यही डेफिनेशन लिखी। अब आपका सर्वर क्या होता है कि सिर्फ सर्वर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेटा, हार्डवेयर भी एक सर्वर की तरह वर्क कर सकता है कि एक सेंट्रल सर्वर लगा दिया, इन अदर वर्ड्स एक सेंट्रल प्रिंटर लगा दिया है जिसको सब उसको यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्लाइंट। अ क्लाइंट इज a related term. A client computer is host computer that requests for some services from a server. Okay. ये क्या हुआ, इसको मिनिमाइज करना था, इसको यहाँ पर। सर उसमें लिख रहा है अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वायर्स, मतलब जस्ट क्लाइंट अपने आप को एडजस्ट कर लो। पेज को थोड़ा इधर लो। ठीक है, अब सही है। सो व्हाट यू आर सेइंग सर? वो क्लाइंट कंप्यूटर की डेफिनेशन में रिलेटेड टर्म, अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट। अरे बाबा देखिए, आप मेरी बात समझिए। एक नेटवर्क में जब हम जुड़ते हैं, सपोज बेसिकली हमारी दो चीजें होती हैं, एक सर्वर साइड एंड होता है, एक क्लाइंट साइड एंड होता है। सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट नॉर्मली सर्विस को रिसीव करता है, ये जनरल डेफिनेशन है। अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। आया समझ में? यस सर। सर्विस प्रोवाइड करेगा, और हम जो है, जैसे कि हमने गूगल से सेंट पॉल्स की साइट खोली, तो सेंट पॉल्स की जो साइट है वो सर्वर साइट है। आप जो अब उस पर एक्सेस कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, आप क्लाइंट साइड है। इज इट क्लियर? आप वहां से सर्विस को मांगोगे, ये लिखा है ना, इन अदर वर्ड सर्वर कंप्यूटर सर्व द रिक्वेस्ट कंप्यूटर। तो रिक्वेस्ट कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट्स है। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट्स। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क हार्डवेयर। कुछ भी प्रिंटर विंटर कुछ भी, अदर देन होस्ट एंड वायरिंग ए नेटवर्क रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन, हैव टू कैरी आउट वेरियस रोल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कि रोल करती हैं। मॉडेम भी आप कह सकते हैं हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, आपके राउटर की जरूरत पड़ती है, स्विच की जरूरत पड़ती है, आपके गेटवेज की जरूरत पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदर देन होस्टिंग नेटवर्क रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कैरी आउट वेरियस और सच एज एस्टैब्लिशिंग करेक्शंस, कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक। देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर दैट आर रिक्वायर्ड। एनआईसी, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी। नेटवर्क कार्ड अटैच्ड टू अ होस्ट वाज टू एस्टैब्लिश नेटवर्क कनेक्शन। हब स्विच राउटर क्यों होता है? कनेक्टिविटी के लिए। समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, ऐसे ही पढ़ना है इसको। पेज नंबर था ये 387, 386 आना चाहिए। 388 कैसे है? 386, 87 हो गया ना? हाँ 88 ही सही है, 88 आना चाहिए। क्लियर दिखना चाहिए। नेक्स्ट कम्स हियर कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कौन होता है? होस्ट ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क विद अदर होस्ट एंड सर्वर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडिया। द कम्युनिकेशन चैनल्स कैन आइदर बी वायर्ड और वायरलेस। या तो आपका वाईफाई कनेक्टिविटी होगी, वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, या केबल नेटवर्क होगा जिसके थ्रू
आप तो ये सारे आपके मीडियम हैं, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, ये मीडियम कहलाएंगे। ओके, वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल मतलब सिंपल से है, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो चैनल्स कहलाएंगे, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो। नाउ वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल व्हेन होस्ट एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू, अच्छा हाँ ये भी याद रखना, गाइडेड और अनगाइडेड। जो गाइडेड होगा आपका केबल और अनगाइडेड होगा वेव्स, like network cables. Okay, it is called wired communication. Wireless communication when hosts and servers are connected with one another through unguided media like radio waves, satellite waves, microwaves, etc. ठीक है? यस सर। ओके, अब कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही झेलना है, मुझे याद रखना, आपको भी और मुझे भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस थ्योरी को पढ़ाने का, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है, आई विल श्योरली कवर दिस। सॉफ्टवेयर, देखो मैं अपनी तरफ से एफर्ट करता हूँ बेटा, आपके लिए पेजेस स्कैन किए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, कनेक्ट करके पेन ड्राइव मोबाइल के थ्रू मैंने इसको ट्रांसफर किया है आपके लिए, सिर्फ ताकि आपको डेफिनेशन पता चल जाए। द सॉफ्टवेयर लेयर्स ऑफ अ नेटवर्क मेक नेटवर्किंग पॉसिबल। दिस कंप्राइजेस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर के बिना चलेगा नहीं भाई। नेटवर्क वर्क्स ऑन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में होता है, इंटरनेट में होता है, टीसीपी आईपी। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड। अब सीधी सी बात है, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हम लोग क्लाइंट साइड पे होते हैं तो क्या यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर सर्वर साइड पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह की स्क्रिप्टिंग यूज की जाती है। ओके, जैसे कि आपकी PHP है या आपकी ASP है, एक्टिव सर्वर पेजेस एक्सेट्रा। तो सॉफ्टवेयर का तो बहुत बड़ा रोल है। शुड आई गो अहेड? यस सर। आपके पास डेफिनेशन सारी चीजें हैं, आप इसको वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स, दैट इज कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। अब वही आ जाएगा लैंड मैन वैन पैन, मैं अभी बताता हूँ आपको। अ नेटवर्क कैन मीन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक कंप्यूटर्स टू चेन ऑफ अ न्यू, मैं क्या पढ़ूंगा, पढ़ देना। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में होता है, सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है वो कहलाता है पैन। नोट कर लो, अगर इसमें लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप अपने घर में जो कनेक्शन बनाते हैं नेटवर्क का, दैट इज नोन एज पैन, यूजिंग थ्रू वाईफाई राउटर। वाईफाई राउटर आपका मॉडेम हो सकता है, या आजकल आपके डिफरेंट राउटर आ रहे हैं, ठीक है, वाईफाई राउटर आ रहे हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, जितने घर के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिसमें भी आपके वाईफाई चिप लगी हुई है, उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक और स्मार्ट टीवी और लैपटॉप और डेस्कटॉप और मोबाइल्स एक्सेट्रा। उसके लिए आपको एक पासवर्ड पता होना चाहिए, यू कैन कनेक्ट, एंड इसकी रेंज डिपेंड्स ऑन द राउटर। आपका राउटर जितना पावरफुल होगा उतना रेंज होगी, ठीक है। वाईफाई कनेक्टिविटी नॉर्मली 30 फीट मतलब 10 मीटर्स के रेंज में होती है, 30 मीटर्स में आराम से कैच करता है, मगर आजकल WiMAX भी आ गया जो बहुत ज़्यादा उसकी रेंज होगी। तो आई विल टॉक टू, अब इसके ऊपर मैं बाद में करूँगा। पहले आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, यानी पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क इज यूज्ड फॉर पर्सनलाइज्ड वर्क सच एज a network created at home using a Wi-Fi router। ये डेफिनेशन हो गई इसकी, काफी है। अब एग्जांपल आप देते रहो कि आप वाईफाई राउटर से अपने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट टीवी कर सकते हो, मोबाइल्स कर सकते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ओके, नेक्स्ट इज योर LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। Small computer network that are confined to a localized area such as office building, school building, colony, etc., etc. They are factory, they are come under this category, that is local area network। जैसे अभी अपने स्कूल में नेटवर्क चल रहा है तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। सो लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल अपने स्कूल में जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें भी हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी यूज की है, बस टोपोलॉजी है। मैं इस पर डिस्कस करूंगा, मगर अभी बता दूं क्यों, क्योंकि हर एक का केबल अलग अलग क्लास में गया है।
अगर एक ही सिंगल लेंथ केबल पे करते तो उसमें एक डिफिकल्टी क्या थी कि मान लो किसी की क्लास में नेटवर्क रुक जाता तो फिर सारे आगे की दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हमने स्टार्ट भले से थोड़े केबल ज़्यादा लगे, एक्सपेंस ज़्यादा आया। सो लोकल एरिया नेटवर्क में clear the key purpose of LAN server is uses in resource sharing, the hardware as well as software resources are shared too. अब आप एक ही मॉडेम हमने यूज किया है और उसके थ्रू, बल्कि हमने एक स्विच यूज किया है और उस स्विच के थ्रू हम लोगों ने डिफरेंट रूम्स में कंप्यूटर इंस्टॉल करके वी आर एट प्रेजेंट वी आर टीचिंग यू। इसमें हम लोकल जैसे अपने लैब में प्रिंटर भी हम शेयर कर सकते हैं रख के, या यहाँ पर भी एक जगह प्रिंटर रख के शेयर कर सकते हैं। मॉडेम शेयर होता है, आपका कोई भी जो वाईफाई प्रोवाइड करता है डिवाइस, वो हार्ड डिस्क भी शेयर हो सकता है। हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में आके हार्ड डिस्क को भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछिए, तो मैं अगले पेज पे जाऊँ। लोकल एरिया नेटवर्क कंफाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया सच एज अ फैक्ट्री, बिल्डिंग, स्कूल, ठीक है, एक्सेट्रा। समझ में आ गया क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं? Yes, वो sir. बता दिया मैंने। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं लास्ट लूंगा आज, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ओके, हियर आई विल टेक, ठीक है, लेंस आर सेड टू हैव अ ज्योग्राफिकल रेंज अप टू 1 किलोमीटर बताते हैं, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तभी वो लोग। नेक्स्ट कम्स व्हेन, उससे पहले मैं आपको मैन बता दूं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिख लो। इसमें दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो बाद में देख लेंगे। इन्होंने वैन सीधे दिया है, आप लिखिए मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, a network which is spread across a city, over a city, which is spread over a city is metropolitan area network. अब आपसे कोई एग्जांपल पूछ सकता है तो आप एग्जांपल लिखिए, केबल टीवी नेटवर्क, अ नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय केबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। आजकल पूरे शहर में एक केबल नेटवर्क चालू हो गए हैं, दैट इज metropolitan area network. And the last one here is, do you want to ask anything about metropolitan area network? एक शहर, metropolitan शहर, city which is spread across a city is considered as a metropolitan. अब metropolitan में क्या होता है कि हम different land को जोड़ के एक बड़ा मैन बना लेते हैं, metropolitan area network। ये भी करते हैं कि मान लो एक कॉलोनी का नेटवर्क है, उससे दूसरी कॉलोनी का नेटवर्क एंड उससे दूसरी कॉलोनी का नेटवर्क होते होते वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। क्लियर है? ऐसा ही होता है, पहले एक कॉलोनी में नेटवर्क आता है, फिर देखो दूसरी कॉलोनी में भी नेटवर्क आ जाता है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, वाइड एरिया नेटवर्क, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्री, it has a very big geographical area, in fact it's spread across continents, that is known as wide area network. And the example of wide area network is इंटरनेट। इंट्रानेट भी बोल सकते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट में थोड़ा डिफरेंस है। इंटरनेट जो सभी के लिए यूज होता है, इंट्रानेट यूज्ड बाय मल्टीनेशनल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर स्पेसिफिक यूज अक्रॉस कंट्रीज, दैट इज इंट्रानेट। इंटरनेट सबके लिए, जहां तक मुझे पता है यही होना चाहिए। फिर देख लेते हैं यार, बोल तो दिया, नेट पे देख लेता हूँ। इंट्रानेट, इंट्रानेट मीनिंग a local or restricted communication, especially a private network created using world wide web। ठीक है ना भाई, सही बोला था, इंट्रानेट, ये इंट्रानेट है। इंट्रानेट, ओके। So intranet communication, especially a private network creating using world wide web, using world wide web, understood? ओके, एंड इंटरनेट जो आपकी डेफिनेशन है हमने बताई दी थी, अभी बता देंगे और आगे भी। तो द नेटवर्क
WAN is group of computers that are separated large distance and tied together. It can be group of LANs that are spread across several locations, connected to look like big LAN. The WAN links computer to facilitate fast and efficient exchange. अब आप पूछोगे कि LAN से कैसे बनता है? आज के वर्ड में you know that ऑप्टिकल फाइबर अक्रॉस कंट्रीज हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहां से आप गल्फ कंट्री तक केबल बिछ गई हैं, डू यू नो दैट? थ्रू सीज अंडर सीज वो जाती हैं, कई बार वो केबल कट भी जाती हैं, मगर ऐसा नहीं होता, 99% सेफ होती हैं, काफी थिक केबल होती है। अब सो वेरी बिग एरिया नेटवर्क इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क एंड एग्जांपल ऑफ दिस इज इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे मैन के बारे में लिखा है इन्होंने, man which refers to a network that is an area as big as the city, but these days this terms has become redundant क्योंकि एक्चुअली ये अब सब कुछ वाइड एरिया नेटवर्क में ही जा रहा है, एक सिटी पे नहीं बल्कि उस सिटी से बहुत आगे तक बढ़ गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस टर्म को उतना नहीं मानते, बट फिर भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले तो आपको मालूम हो जाए। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? I will keep my class till here only because I have to take another class and even other teacher will come in this class. Okay, we'll meet in the next class. Till then, goodbye, have a nice day, bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir.